Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. It's me Inamullah Choktai and we are discussing chapter number 6. Today our topic is Bernoulli's equation. Please like, comment and subscribe, and don't forget to hit bell icon for more videos. You are watching my YouTube channel Dr. Physics. So students, our topic is Bernoulli's equation, and in this topic first of all we have to discuss some key points. And we have to keep in mind these key points while we are discussing this topic. Among these key points, first of all, we have to discuss the introduction of the Bernoulli's equation. Next, we have to define the Bernoulli's equation. Next, we will talk about how to derive the equation. Basically, in this heading, we have to discuss some assumptions and the basic rules which may be helpful in deriving this Bernoulli's equation. And then we have to discuss the schematic diagram. And then we have to derive finally this equation. So students, regarding introduction of the Bernoulli's equation, basically we have to discuss this diagram. Diagram basically is representing a vessel that is of non-uniform cross section having varying heights. दो पैरामीटर मैंने बोले हैं इस वेसल के हवाले से कि इसका एरिया तब्दील हो रहा है, A1 है, यहाँ पे A2 है. इसकी पूरी लेंथ में इसका एरिया एक जैसा नहीं है. ये पहली बात है कि इसका एरिया एक जैसा नहीं है थ्रू आउट इट्स लेंथ. और इसके जो रेफरेंस पॉइंट से सपोज ग्राउंड से इसकी जो हाइट है वो हाइट भी एक जैसी नहीं है. H1 और H2 दो हाइट्स दिखाई गई हैं. H1 कम है, H2 ज़्यादा है. सो अगर इस किस्म के फ्लूइड में से पाइप में से कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा हो तो उस फ्लूइड का प्रेशर जो है वो भी एक जैसा नहीं होगा, वो भी चेंज होगा. So pressure difference की वजह से जो work done है on the fluid that appears in the form of the change in the kinetic energy and the change in the potential energy. This is the basic theme of this equation that we have to derive. As the fluid moves through a pipe of the varying cross section and height, the pressure will change along the pipe. Bernoulli's equation is a fundamental equation in the fluid dynamics that relates pressure to the fluid speed and height. The principle is named after Daniel Bernoulli, who was a Swiss mathematician and physicist, and he published his principle in his book Hydrodynamica in 1738. So students, next we have to define this Bernoulli's equation. In its definition, Bernoulli's equation states that sum of the pressure, kinetic energy and potential energy per unit volume in a steady flow of an incompressible and non-viscous fluid at any point through a pipe having non-uniform cross-sectional area remains constant. इस डेफिनेशन में हम लोगों ने तीन चीजें ऐड की हैं. नंबर 1, pressure of the fluid at any point of the vessel, kinetic energy per unit volume again at any point of the vessel. Next is the potential energy per unit volume again at any point of the vessel. वेसल के किसी भी जगह पर आप ये तीन पैरामीटर्स ऐड करें, इनका जवाब कांस्टेंट आना चाहिए. ये बर्नौलीज इक्वेशन है. तीन चीजें हैं जो हम ऐड करेंगे और फ्लूइड की प्रॉपर्टीज बताई गई हैं. फ्लूइड हमारा स्टेडी फ्लो करता है, इनकम्प्रेसिबल है, नॉन विस्कस है, जो कि आइडियल फ्लूइड के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. और पाइप हमारा नॉन यूनिफॉर्म है और हैविंग द वेरिएशन इन द हाइट्स एज वेल. तो इसमें तीन पैरामीटर्स को आप ऐड करोगे, प्रेशर को, काइनेटिक एनर्जी को और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. किसी भी जगह से किसी भी पॉइंट पे वेसल के अगर हम ये तीन पैरामीटर्स ऐड करते हैं तो हमारा आंसर कांस्टेंट रहना चाहिए. ये स्टेटमेंट बर्नौलीज इक्वेशन कहलाती है. मैथमेटिकली इट इज एक्सप्रेस्ड एज P plus half rho V square plus rho GH is equal to constant. P stands for pressure, half rho V2 square basically stands for the kinetic energy per unit volume, and rho GH stands for the potential energy per unit volume. In the next slide, basically we are having the concept of an easy way to define the Bernoulli's equation, and we have divided the equation in 3 points regarding the 3 parameters of the vessels and the fluid. तो पहले पॉइंट में हम बात कर रहे हैं फ्लूइड के हवाले से.
बर्नौलीज इक्वेशन में अगर हम तीनों पॉइंट्स जो भी हम लिखेंगे यहाँ पे और बाद में अगर हम इनको पढ़ें तो हमारी बर्नौलीज इक्वेशन की डेफिनेशन ही बनेगी। लेकिन इन तीनों हिस्सों को अलग इसलिए किया है ताकि आपको उन डेफिनेशन को समझने में आसानी रहे। सो हम बात करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लूइड के बारे में। हमारा फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, नॉन विस्कस है और साथ में स्टेडी फ्लो है। स्टेडी फ्लो का मतलब ये होता है कि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती जब वो मूव कर रहा होता है किसी एक पॉइंट पर, पॉइंट टू पॉइंट तो वेरी हो सकती है। जहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होती है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन स्पेशली याद रखिएगा स्टेडी इसके फ्लो के हवाले से, स्टेडी फ्लो का मतलब क्या है कि किसी एक पॉइंट पर जो वेलोसिटी एक पार्टिकल की होगी उसके बाद आने वाले तमाम पार्टिकल्स की वेलोसिटी उस एक पॉइंट पर एक जैसी होगी। इसे स्टेडी फ्लो बोलते हैं। तो फ्लूइड जो है वो स्टेडी फ्लो रखता है, नॉन विस्कस है और इनकम्प्रेसिबल है। और नेक्स्ट हम ऐड करेंगे इसमें एट्रीब्यूट्स ऑफ द पाइप। थ्रू अ पाइप ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया मीन्स कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया एक जैसा नहीं है। अब इसमें हम ऐड करेंगे वी हैव टू सम the pressure, the kinetic energy and the potential energy per unit volume at any point of the pipe and the answer remains same। अब इन तीनों पॉइंट्स को अगर हम मिला के पढ़ें तो हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन की डेफिनेशन बन जाएगी। याद रखिएगा इसको हमने तीन हिस्सों में डिवाइड किया है। एक बात हमने फ्लूइड के हवाले से की है, सेकंड बात हमने पाइप के हवाले से की है और तीसरी बात हमने तमाम प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को सम अप करने के हवाले से की है। फॉर एन इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस फ्लूइड हैविंग स्टेडी फ्लो through a pipe of non-uniform cross-sectional area, the sum of the pressure, kinetic energy and potential energy per unit volume at any point of the pipe remains constant। मैंने इन तीनों को मिला के पढ़ा तो ये बेसिकली हमारे पास इक्वेशन बन जाती है बर्नौलीज इक्वेशन की। प्रेशर इज इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू द कांस्टेंट। अभी हमने बात की है इस इक्वेशन में। अच्छा, इस तरह एक और अभी मैंने बात की थी कि प्रेशर P फॉर प्रेशर और हाफ रो वी स्क्वायर बेसिकली काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे ये जो था रो जी एच बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी को इंडिकेट करता है। तो स्टूडेंट आप थोड़ा सा अगर गौर करें तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि बेसिकली P फॉर प्रेशर होता है हाफ रो वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी को कैसे एज्यूम करते हैं? सपोज अगर हम इस रो को मैस कंसीडर करें, क्योंकि रो क्या होता है, मैस बाय वॉल्यूम होता है, डेंसिटी मैस बाय वॉल्यूम होती है। अगर मैं इसको मैस कंसीडर करूं तो ये हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी बनती है। इस तरह इस रो को भी मैं मैस कंसीडर करूं तो ये एम जी एच बन जाएगा, मीन्स ये पोटेंशियल एनर्जी बनती है। तो ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बेसिकली एंड द प्रेशर इन तमाम का समेशन थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द non-uniform cross-sectional area of the pipe remains constant. Next, we have to talk about how to drive the equation, where we have to discuss some assumptions and principles, basically the key points of basic rule that we apply to calculate this equation. We have to keep in mind these assumptions. First of all, we have to talk about the attributes of the pipe. दो बातें की गई है जी इसमें। नंबर एक, हमारा पाइप जो है वो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का है और उसकी हाइट मुख्तलिफ है। दो बातें ऐड की गई हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इस एंड पे जो हमारा ये हमारा लोअर पोर्शन है, लोअर एंड है, इसको मैं सर्कल कर देता हूँ। ये हमारा जो लोअर एंड दिखाया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका एरिया कम है और ये वाला जो एरिया है इसका एरिया बहुत ज़्यादा है, इसकी हाइट भी ज़्यादा है, इसकी हाइट जो है वो कम है। तो ये एट्रीब्यूट्स हैं हमारे कंटेनर के हवाले से। नेक्स्ट, एट्रीब्यूट्स ऑफ द फ्लूइड। हम एज्यूम करते हैं कि हमारा फ्लूइड जो है आइडियल फ्लूइड है। सो आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज होंगी, नॉन विस्कस होगा, इनकम्प्रेसिबल होगा और स्टेडी फ्लो होगा। नॉन विस्कस का मतलब क्या होता है कि उसमें इंटरनल फ्रिक्शन नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, फ्लो उसका सुपर्ब होगा। और इनकम्प्रेसिबल का मतलब ये है कि वो कंप्रेस नहीं होता, और अगर वो कंप्रेस नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि फिर डेंसिटी में चेंजेस नहीं आने वाली, डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। और स्टेडी फ्लो का मतलब क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया था। स्टेडी फ्लो का मतलब ये होता है कि वेलोसिटी डज नॉट चेंज एट अ पॉइंट विद इन द वेसल। किसी भी एक पॉइंट पे कि एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट के साथ कंपेयर नहीं करेंगे। अगर हम सपोज हम इस पॉइंट की बात करते हैं जहाँ पे ये मैंने स्पॉट लगाया है, अगर हम इस पॉइंट की बात करते हैं तो इस पॉइंट पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे उन तमाम की वेलोसिटी एक जैसी होनी चाहिए। ये है स्टेडी फ्लो का मतलब। सेकंड वन, थर्ड वन, the basic idea, law of conservation of energy in the form of the work energy theorem।
जब नंबर 4 में आपको याद होगा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हम लोगों ने पढ़ा था, हम उसी वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को दैट इज द फॉर्म ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी याद रखिएगा, अप्लाई करेंगे इन द डेरिवेशन ऑफ दिस इक्वेशन। और वो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल बेसिकली क्या था, वो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल था कि वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। लेकिन हम यहाँ पे कह रहे हैं कि वर्क डन बेसिकली इज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि जो वर्क डन है ऑन द फ्लूइड बेसिकली दो तरह से वो सामने आएगा, change in the kinetic energy because the fluid changes its velocity point to point regarding the area of the container, and again because the area the vessel is having varying height, so it would have the different values of the potential energy as well. So that's why we can say the work done basically on the fluid comes in the form of the change in the potential energy and change in the kinetic energy। ये दोनों तरह से ये सामने आएगा वर्क डन। ये बेसिक इक्वेशन है, याद रखिएगा, हम इसको यूज करेंगे इन द डेराइविंग दिस इक्वेशन। स्कीमेटिक डायग्राम में हमें अगेन एक कंटेनर दिखाया गया है। इस कंटेनर में इस वेसल या पाइप के अंदर डिफरेंट एरियाज दिखाए गए हैं। हम वन बाय वन इनको हाईलाइट करते हैं। और ये सबसे पहले हम अपर एंड, ये वाली साइड अपर एंड के लिए है, और ये पोर्शन जो है वो हमारा लोअर एंड के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे लोअर एंड पे हमने फोर्स दिखाई है F1, और आप जानते हैं ये फोर्स F1 कैसे डिराइव की गई है, बिकॉज प्रेशर को बाय डेफिनेशन आगे जाके हम दोबारा लिखेंगे। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो फोर्स क्या बन जाएगा, फोर्स बन जाएगा PA। तो पॉइंट 1 के लिए या लोअर एंड के लिए यहाँ पे सारे पैरामीटर्स हमारे 1 1 होंगे, तो F1 की बात करते हैं, F1 इज इक्वल टू P1A1। इसी तरीके से हमारे पास F2 है, दैट इज P2A2। उसके बाद एरिया A1 यहाँ पे दिखाया गया है, दूसरी तरफ एरिया A2 दिखाया गया है। और नेक्स्ट H1 हाइट हमारे पास लोअर एंड पे है, अपर एंड पे हमारे पास हाइट ज़्यादा है, H2 है। उसके बाद डेल्टा X1 है। डेल्टा X1 क्या है, ये डिस्टेंस है। इसको याद रखिएगा, ये डिस्टेंस क्या है, बेसिकली डिस्टेंस मूव्ड बाय द फ्लूइड है। अब यहाँ पे दो किस्म के कलर आपको नजर आ रहे हैं फ्लूइड के हवाले से, एक लाइट कलर है, एक डार्क कलर है। डार्क कलर का जो लिक्विड है वो लाइट कलर के लिक्विड पर फोर्स लगाता है। याद रखिएगा मैं क्या कह रहा हूं, जो डार्क कलर का लिक्विड है वो लाइट कलर के लिक्विड पर फोर्स लगाता है, क्योंकि जब मैं वर्क डन कैलकुलेट करूंगा तो मैं ये कहूंगा वर्क डन बाय द डार्क ब्लू लिक्विड ओवर द लाइट ब्लू लिक्विड। मतलब इस तरह से मैं कुछ डिफरेंशिएट करना चाहूंगा कि जब ये मतलब पॉइंट सपोज A1 से या इस पॉइंट से इस पॉइंट से लिक्विड इस पॉइंट तक मूव करता है, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये वाला डिस्टेंस। और ये बेसिकली प्रेशर कौन लगा रहा है, वर्क कौन लगा रहा है, तो ये डार्क ब्लू वाला हिस्सा जो है ये अपना प्रेशर लगा रहा है। तो हम इसके हवाले से बात करेंगे। तो आपने याद रखना है कि डार्क ब्लू लाइट ब्लू पर बेसिकली फोर्स लगा रहा है। बेसिकली लिक्विड तो एक ही होगा जो फ्लो कर रहा होगा, लेकिन हमने अपने एसम्पशन के लिए एक कलर दे दिया ताकि हम ये एज्यूम कर सकें कि जो लिक्विड यहाँ पे था इस वक्त, वो कुछ देर के बाद वो वहाँ पे पहुँच जाता। मतलब जो यहाँ पे लिक्विड था इस जगह पे जब उसके ऊपर फोर्स लगाई जाएगी तो वो यहाँ पे पहुँच जाएगा, और उसने कितना फासला तय किया होगा, वो डेल X1 उसने कवर किया होगा। तो इसी तरह हमारे पास दूसरी तरफ डेल X2 ऊपर दिखाया गया है। और नेक्स्ट हमारे पास V1 वेलोसिटी, इस हिस्से में जो वेलोसिटी है इसको हम V1 कहते हैं, और दूसरी तरफ जो वेलोसिटी है ये वाला हिस्सा जो है ये V2 दिखाया गया है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास P1 प्रेशर दिखाया गया है, और सेकंड साइड पे प्रेशर जो है वो P2 दिखाया गया है। इस तरह तमाम दोनों पोर्शंस में हम सेम पैरामीटर्स को डिस्कस कर सकते हैं। आपने इस डायग्राम को बनाना है और इसको समझना है। नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द वर्क डन एट द लोअर एंड। आप याद रखिएगा, अभी मैंने बात की थी कि इसकी बेसिक थीम क्या है क्वेश्चन को ड्राइव करने की, वो है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इन द फॉर्म ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द वर्क एनर्जी थ्योरम और द प्रिंसिपल। और उसमें हमने बात की थी डेल्टा W या W इज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। सो हमने वर्क डन की वैल्यूज लेनी है दोनों सिरों पे, और फिर काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे और फिर पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन एट द लोअर एंड। तो ये जी डायग्राम है और ये हमारा लोअर एंड दिखाया गया है। इस लोअर एंड पे हमने कैलकुलेट करना है वर्क डन को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा एरिया है A1 और ये हमारा प्रेशर है P1। सो हमारा वर्क फोर्स की वैल्यू क्या होगी, वो बन जाएगी P1A1। ये मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। और ये डिस्टेंस है
डेल x1। तो मैंने यहाँ पे हाईलाइट इसलिए किया है कि मुझे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए, मुझे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है। तो मैं इन्हीं दो के हवाले से बात करूंगा। दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट। सो इक्वेशन है W1 इज इक्वल टू F1 डेल D1, और फिर W1 इज इक्वल टू F1 डेल D1 की जगह डेल x1 डिस्टेंस मूव बाय द फ्लूइड हमने लिखा। अब प्रेशर, ये बेसिकली प्रेशर की बेसिक डेफिनेशन है जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू द फोर्स पर यूनिट एरिया। सो हमारे पास फोर्स बन जाती है P1A1, F1 इज इक्वल टू P1A1, वैल्यूज पुट करेंगे तो W1 हो जाएगा P1A1 डेल x1। इसी तरीके से अपर एंड में भी हम वैल्यू ऑफ द वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हैं सेम पैरामीटर्स पे। यहाँ पे भी हमारे पास जो फोर्स होगी F2 वो P2A2 होगी, डिस्टेंस डेल x1 होगा, ये डिस्टेंस है जो दिखाया गया है, डेल x2 जो लिक्विड यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करता है, और यहाँ पे फोर्स होगी अगेन P2A2 होगी। अब यहाँ पे हमने W2 को नेगेटिव दिखाया है। नेगेटिव क्यों दिखाया है कि जो P2 है वो अपोजिट डायरेक्शन में पुश करता है लिक्विड को, लेकिन जो लिक्विड है उसकी वेलोसिटी फॉरवर्ड है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि P2 जो लिक्विड है डार्क ब्लू वाला, नो डाउट वो हर तरफ से प्रेशर बिल्डअप कर रहा होगा, लेकिन वो आने वाले लिक्विड पे, इस लाइट ब्लू वाला आने वाला लिक्विड है उस पर P2 अपनी फोर्स लगाएगा। अब P2 की डायरेक्शन देखें और वेलोसिटी जो देखें लाइट ब्लू वाले लिक्विड की फ्लो की जो वेलोसिटी दिखाई गई है ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है। इसके अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से हमने इसको वर्क डन नेगेटिव लिखा है -F2 डेल्टा D2। सो -F2 डेल्टा D2 की जगह डेल x2 लिखेंगे। उसके बाद प्रेशर बाय डेफिनेशन F2 बाय A2, सो F2 इज इक्वल टू P2A2 एंड W2 इज इक्वल टू -P2A2 डेल x2। वैल्यूज पुट की हैं। ये बहुत सिंपल सी इक्वेशन है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। नेट वर्क डन कितना होगा, हम दोनों को ऐड कर देंगे W1 प्लस W2। आप इनकी वैल्यूज पुट करेंगे जो अभी हमने कैलकुलेट की हैं, P1A1 डेल x1 माइनस P2A2 डेल x2। सेकेंड वैल्यू जो कि माइनस में थी तो उसको यहाँ पे माइनस में लिखा है। अब यहाँ पे बेसिकली हम चेंज करना चाहेंगे डेल एक्स की वैल्यू को, डेल एक्स की वैल्यू को। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे साइड पे दिखाया। बेसिक इक्वेशन आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं, S इक्वल टू VT होता है। और यही इक्वेशन अगर मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँ तो S की जगह मैं लिखूंगा डेल x1, वेलोसिटी की जगह लिखूंगा V1 और T की जगह लिख देता हूँ T। इसी तरह डेल x2 की जगह लिखूंगा V2 T2। तो मैं यहाँ पे डेल x1 की जगह V1 T1 और डेल x2 की जगह V2 T2 लिखूंगा। यह हमारी इक्वेशन बन जाएगी P1 A1 और डेल x की जगह V1 T और दूसरी तरफ भी माइनस P2 A2 V2 और T। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमें पता है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 और A1 V1 डॉट T बेसिकली इज इक्वल टू A2 V2 डॉट T एंड दिस इज इक्वल टू द वॉल्यूम। और हमारे पास V जो है बेसिकली ये वॉल्यूम अंडर कंसिडरेशन है जो कि हम ब्लू शेडेड एरिया में दिखा रहे थे, लाइट ब्लू वाला जिसके हवाले से हम बात कर रहे थे। और इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, इक्वेशन कैसे आई है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के हवाले से है। बेसिकली हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में क्या पढ़ा था, हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में पढ़ा था कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 और V2, और इसको हमने बराबर किया था बाय T से, ऐसे था ना। सेकेंड डेफिनेशन इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड का, वॉल्यूम पर सेकंड के हवाले से हमने डिफाइन किया था, ये मैंने T बनाया। अब इस T को उठा के यहाँ पे ले आए हैं तो हम इस तरह इसको वॉल्यूम के तौर पर लिख सकते हैं। और इसको एक और तरीका भी हो सकता है समझने का कि वेलोसिटी बेसिकली डेल एक्स बाई टी होता है। अगर हम वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टी इस टी के साथ कट जाएगा तो बाकी का बच जाएगा डेल एक्स। अब इस डेल एक्स को उठा के जो वेलोसिटी की जगह मैं लिखूंगा, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसको एरिया के साथ तो क्या आ जाएगा, वो मेरा वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, क्योंकि ये टी तो कट जाएगा जब मैं इसको टी के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इस वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में भी ऑलरेडी टी मौजूद होगा, तो बाकी बच जाएगा डेल एक्स को थर्ड डायमेंशन से मल्टीप्लाई करूंगा, वॉल्यूम को थर्ड डायमेंशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी एरिया को थर्ड डायमेंशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि A1 V1 डॉट T इज इक्वल टू A2 V2 डॉट T एंड दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम। सो पुटिंग दिस इक्वेशन, अब यहाँ पे A1 V1 T की जगह आपने वॉल्यूम लिख दिया और यहाँ पे भी A2 V2 की जगह भी आपने वॉल्यूम लिख दिया। अब यहाँ से वॉल्यूम कॉमन ले लेंगे, उसके बाद वॉल्यूम की वैल्यूज पुट कर देंगे, दैट इज m बाय रो, ये हमारे पास वर्क की वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो वर्क है दैट हैज बीन डन ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ द प्रेशर,
basically comes in the form of the change in the kinetic energy and some of the work comes in the form of the change in the potential energy. ये बात हमने पहले डिस्कस की थी. So change in the kinetic energy half mv2 square minus half mv1 square और change in the potential energy mgh2 mgh1 दोनों पॉइंट्स के आपने एनर्जीज का जस्ट डिफरेंस ले लेना है रिगार्डिंग काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द वर्क एनर्जी थ्योरम. अभी मैं पहले बात कर चुका हूँ. वर्क डन बाय द प्रेशर डिफरेंस पर यूनिट वॉल्यूम बेसिकली इज इक्वल टू द गेन इन द काइनेटिक एनर्जी प्लस गेन इन द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. सो ये क्वेश्चन है जिसको हमने फर्दर यूज करना है और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो अभी हमने क्वेश्चन लिखी इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे और ये हमने वर्क की जगह उसकी वैल्यूज पुट कर दी जो अभी हमने कैलकुलेट किया था एक्सप्रेशन. ये एक्सप्रेशन याद रखिएगा हमने वर्क का कैलकुलेट किया हुआ है. तो बेसिकली ये P1 माइनस P2 m बाय रो ये वर्क है. इसी तरीके से सेकंड जो एक्सप्रेशन है हमारे पास हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर ये चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी है ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं. इसी तरह mgh2 प्लस mgh1 ये भी हमारा कैलकुलेटेड है एक्सप्रेशन डेल पी के हवाले से हमने जस्ट वैल्यूज पुट की हैं. उसके बाद ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी जिसको हमने रीअरेंज किया. कैसे रीअरेंज किया याद रखिएगा. इन तमाम फैक्टर्स में से आपने m को कॉमन ले लिया है. m को आपने कॉमन ले लिया m हमने बाहर निकाल लिया और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये वैल्यू आएगी क्योंकि हम m को यहाँ m से उड़ा देंगे और इस रो को उठा के अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. इस रो को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस हाफ रो gh2 माइनस हाफ प्लस रो gh2 माइनस रो gh1 ये हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा. मींस रो को हम अंदर मल्टीप्लाई करें. उसके बाद अब यहाँ पे जो माइनस वाला पोर्शन है रिगार्डिंग पोजीशन 1 और ये भी माइनस वाला पोर्शन है रिगार्डिंग पोजीशन 1 इसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाते हैं इस तरफ और इसको भी हम मूव करते हैं इस तरफ और यहाँ पे जो P2 हमारे पास नेगेटिव है इसको उठा के हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं. तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी. इस इक्वेशन को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं. तो इक्वेशन बन जाएगी P1 plus half rho V1 square plus rho GH1 is equal to the P2 plus half rho V2 square plus rho GH2 and again इस equation में I do think so this is the same equation, no change in it. So at the end we can say P1 for the pressure at the lower end, half rho V1 square kinetic energy at the lower end and rho GH1 the pressure energy at the lower end, P2 pressure at the higher end and half rho V2 square kinetic energy at the upper end higher end जो भी था और rho GH2 again the potential energy per unit volume at the higher end. इन तमाम को इक्वेशन जमा करें तो आंसर सेम आना चाहिए. मींस P is equal to half rho V2 square plus rho GH is equal to the constant value. So this is the equation, the end of this equation that we have done. So at the end please like, comment and subscribe and don't forget to hit bell icon for more videos. Thanks for watching.